So let's start the video. Now you see the thumbnail and now you know the topic is learning English. So why I cannot able to speak in English? What if I am also learning English? I know how to read in English. I know how to read a sentences in English. I know how to write in English, but I don't know how to communicate much more better in the English. I know how sentence formatable. I write the sentence perfectly, but I not able to communicate in English. Why? Because I not practice it yet. But now it's time to improve our spoken English. So why I am speaking in English in the first video of learning English? I have options. The first option is I speak in Hindi and explaining you and add some English topics and all. But I not want this. I want you know I also not good in English. But after completing this month, I wanna be freaking good in English communication. Many time I think I wanna be good in English. I wanna communicate with English in front of anyone fluently. So that today I not make any script. Today I not make any idea. Just I write a topic headline. Let's learn English together. And I start making video. If I become good in communication, it sets an example towards you. You also become a good in communication. I know you know the English writing. I know you able to read the English sentences, English paragraph and understand it very good. Now you see my poses, how much time I pose. You see the clips, how much time I cut the video clip, and you also see my confidence. I'm not that much confident in speaking English in front of you because I don't know the English. Let's improve, and in the last we make up some task that you have to perform if you want to improve your English. So let's start a video in Hindi. So hello ladies and gentlemen, तुमने देख ही लिया होगा मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, मेरी इंग्लिश कितनी वाहियात है, मेरी इंग्लिश कितनी फुद्दू है, मेरी इंग्लिश का लेवल मैं माइनस में गिनना चाहता हूँ, मेरी इंग्लिश माइनस में है. वो जो हम छोटे थे ना तब बोलते थे ना वैसी है मेरी इंग्लिश. But I want to change it. Now I change it in a 1 month. Whatever happens, I want to change it. And after completing 1 month, I post the one of the video. मतलब कि मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसमें मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हुआ दिखूंगा आपको कोई भी एनी टॉपिक पे, या फिर हम एक लाइव करेंगे. अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल गए तो फिर एक लाइव करेंगे जिसमें आप मुझे टॉपिक देना और उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ. लेट्स मेक द फन. तुमने मेरा कॉन्फिडेंस देख ही लिया होगा कि मैं कितना ज्यादा अनकॉन्फिडेंट, मैं कितना ज्यादा बोरिंग हूँ while English speaking, but I wanna change it. So I make one of the structure and I include this part of jack of all trades but master of none, but often time better than one. So let's learn the English communication, but not only English. I want to learn English communication. You are know very well English, but you don't know the communication in English. So let's start the video. First of all, enjoy the process. तुम जब तक प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे तब तक तुम इंग्लिश सीख नहीं पाओगे. मुझे पता है तुमने बहुत सारी बार ट्राई किया होगा इंग्लिश सीखना, बहुत सारी बुक्स लाके रखती होगी इंग्लिश पढ़ने के लिए, बट तुम्हें इंग्लिश पढ़ना कभी भी नहीं आया होगा क्योंकि तुम उस प्रोसेस को एंजॉय करते ही नहीं. अगर एक बार तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में मजा आना स्टार्ट हो गया ना, फिर तुम खुद को रोक नहीं पाओगे इंग्लिश में लर्न करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए. इन सिंपल में अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें प्रोसेस को भी इजी बनाना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. वीडियो कंटेंट तुम देखो, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भरे पड़े. कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखो जो इंग्लिश, कोई भी छोटे बच्चों के वीडियोस ले लो, छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं ना वो ले लो. और तुम्हें अगर एनीमे पसंद है, एनीमे कार्टून पसंद है तो वो देखने लगो इन इंग्लिश. इससे तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी. तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन से वर्ड बोलोगे, तुम्हारा वोकल्स इम्प्रूव होगा. तुम्हें पता चलेगा कि ये वर्ड को इस टोन में बोलना है, इस वर्ड को इस टोन में बोलना है, और प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा. और वो सब तुम्हें बुक से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तुम्हें सिखा देगी. एक बार तुमने कोई भी इंग्लिश मूवी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दी, 2-3 बार उसको देख ली और तुम्हें मजा आने लगा, फिर उस मूवी के सारे डायलॉग्स तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे और ऐसे ही सारे प्रोनाउंसेस, सारे वोकल्स वो तुम्हारे माइंड में छप जाएंगे. रीडिंग, इंग्लिश सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना.
लो, इसके लिए मेरे पास एक सिंपलेस्ट आइडिया है। जो टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टेड हो, अगर तुम मोटिवेशन में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम फिटनेस में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम फिलोसॉफी, अगर तुम कोई भी टॉपिक दुनिया का ले लो उसमें इंटरेस्टेड हो, उस टॉपिक के बारे में चैट जीपीटी में सर्च और चैट जीपीटी को बोलो इसके बारे में शॉर्ट नोट बना के थोड़ी बहुत रिसर्च करके दे और तुम्हें कोई आर्टिकल सजेस्ट करके दे जिसको तुम पढ़ सको। एंड जब जब हमने अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ी है तब तक हमारा इम्प्रूव हुआ है इंग्लिश और हमें उस चीज को आगे पढ़ने में भी मजा आया है। एज सिंपल एज दैट। ईगो ऑन अ साइड। अगर तुम्हें इंग्लिश पक्का सीखना है, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना ही है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें कहीं पे भी बोलना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कैसा भी इंग्लिश आता हो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो एक काम करना है, अपने ईगो को साइड में रख देना है। तुम्हें मुझे ही देख, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं हिंदी में बहुत अच्छा कंटेंट डालता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, बट इतना भी अच्छा नहीं है बट डिसेंट है। और अभी मैंने इंग्लिश में बोला, तुमने भी सुना मैं इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है, मैं इंग्लिश में कैसा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल्स जब इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है तब कैसा हो जाता है। अब तुम्हें भी पता चला मैं ये कैसे बोल पाया, क्योंकि मैंने मेरा ईगो को कहीं भी नहीं छोड़ा। मेरे पास मेरा ईगो है, मैंने उसको सिर्फ चेंज कर लिया है, मैंने उसको सिर्फ डायरेक्शन दे दी। अभी के लिए तुम्हारा ईगो साइड में रख दो, जब जब तुम्हें इंग्लिश बोलनी हो तब तुम्हारा ईगो साइड में रखो। ऐसा नहीं होता कि मैं हिंदी में बोल सकता हूँ तो मैं हिंदी में बोलूंगा, हर जगह पे तुम्हारी हिंदी लैंग्वेज काम नहीं आएगी। अभी तुमने देखा, सेम एग्जांपल, मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी इंग्लिश कैसी थी, मैंने बोला ना तुम्हारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने वीडियो इंग्लिश से स्टार्ट, तुमने देख लिया होगा मेरी इंग्लिश की बेसिक लेवल पे है, एकदम नॉर्मल। कहीं पे मैं गया हूँ ना तो मैं पीछे था, मैं किसी से अच्छे से बात कर पाऊँ उसके बाद समझ पाऊँ। मतलब कि मैंने अपनी इंग्लिश स्पोकन को इतना इम्प्रूव नहीं किया कि मैं कोई स्पीच दे पाऊँ, कि मैं कोई बड़ी सी टॉक में जाके बोल, कोई भी इंटरव्यू दे पाऊँ, उतना अच्छा नहीं गया। बट मैं बोल दूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं काम निकालने वाली इंग्लिश बोल दूंगा, उतना तो है, उतना तुम्हारा भी होगा मुझे पता है। नाउ द पार्ट ऑफ टास्क, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने मेरी इंस्टाग्राम की लिंक अटैच कर दिया इस चैनल पर, सो तुम्हें उस पर जाना है, मुझे फॉलो करना है नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो करना, ये वो फालतू बातों में मैं नहीं जाता, हमें सिर्फ तुम्हें इम्प्रूव करना है। सो कमेंट में जाना। अब तुम्हें एक चीज करनी है, तुम्हें वीडियो बनानी है उस टॉपिक पर जो टॉपिक तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद, और उसको तुम पोस्ट भी कर सकते हो या फिर मुझे प्राइवेट में पर्सनल में शेयर कर दो। अगर तुम पोस्ट कर सकते हो, तुम्हारे में इतना जिगरा है कि तुम उस वीडियो को पोस्ट कर पाओ, तो भाई तुम्हें सैल्यूट है। अगर तुम वीडियो को पोस्ट करते हो अपने पेज पे तो मुझे टैग करते हैं, और अगर उसको तुम पोस्ट नहीं करना चाहते, तुम्हारे में उतना जिगरा नहीं है, ब्रूटल ही हूँ इस बात में तो मैं ब्रूटल होऊंगा, तुम्हारे पास उतना जिगरा नहीं है तो एक काम करना, मुझे डीएम कर दे। अगर मेरे डीएम में ना जाए, वो इंस्टा का जफामारी होता है कि तुम डीएम नहीं कर पाते जब तक फॉलो ना, तो एक काम करना, मुझे नॉर्मल मैसेज सेंड करना, तो एक काम करना, मुझे नॉर्मल मैसेज सेंड करना, मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, फिर तुम मुझे भेज पाओगे। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें फॉलो नहीं करना मत करो। मुझे ऐसे फॉलोवर्स नहीं चाहिए जो ऐसे मेरे बोलने पर मुझे फॉलो करे, मुझे ऐसे फॉलोवर्स चाहिए जिसको मेरा कंटेंट पसंद है और वो मुझे फॉलो करे। हमें वो नखरे नहीं करने हैं कि हमारे मिलियंस फॉलोवर्स हो जाए, वो चाहिए ही नहीं कि हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, वो हमारा एंड गोल है। तो हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हमें पहले उसके लिए एक परफेक्ट गोल डिसाइड करना पड़ेगा, परफेक्ट टास्क डिसाइड करने पड़ेंगे। मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी, मोस्टली उस पर फोकस करोगे तो हो जाएगा। और अगर आपको मंथली प्लान चाहिए तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं किसी को भी चैट जीपीटी में ऐसे प्लान बना के नहीं देता। तुम्हें प्लान चाहिए, एक काम करो, मैंने जो टॉपिक्स दिए हैं, मैंने जो टिप्स दिए हैं, उसको चैट जीपीटी पर लिखो और चैट जीपीटी को बोलो कि तुम्हारे लिए एक प्लान बना दे, वो तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग बनेगा। तुम उसे प्रिसाइज करोगे कि मुझे इस टाइम, दिन का आधा घंटा भी काफी होगा, तुम तुम्हारा टाइम उसको बोलोगे तो वो बना देगा। तुम्हें उसको आधे घंटे के लिए बनाना है, 1 घंटे के लिए बनाना है, 2 घंटे के लिए बनाना है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको बोलोगे वो कर देगा। एज सिंपल एज दैट। बस आज के लिए इतना ही। इन केस तुम्हें तुम्हारी नॉलेज को और बढ़ानी हो और तुम्हें तुम्हारी लर्निंग स्किल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना हो, एक काम करना, एक वीडियो बना के रखिए तुम्हारे लिए, उसे देख लेना इसी चैनल में, और तुम्हें ढूंढना ना हो तो मैं उसे पिन कर दूंगा कमेंट में, देख लेना। बहुत अच्छी वीडियो है, अच्छी लगे तो ही देखना, ना लगे तो चले जाना। दिस इज प्रियांश शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।